We see such fast moving cars, these super bikes, and we are very fascinated with the speed of them, isn't it? But do you know what is the ultimate speed limit in the universe? It is the speed of light. It's given by theory of relativity by Einstein. And today we're going to learn about this speed only, but not about the speed of light, about speed of any ordinary body. Hello everyone, my name is Sucheta and I'm your physics man. And the topics that I will be covering today are speed. In that, we'll see what is the uniform speed, what is non-uniform speed, and average speed. After that, we'll be studying about the concept of velocity. Under that, again, it will be a uniform velocity, non-uniform velocity, and average velocity. Then we will see the difference between speed and velocity, and the end will be the acceleration. So the last concept we'll learn is about the acceleration. So without wasting time, let us move to the topic directly. So speed. हम स्पीड ये वर्ड कब यूज करते हैं जब हम कोई कार में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं या फिर कहीं कोई रेस चल रहा होता है वी ऑलवेज सी ना कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया वी ऑलवेज से दैट द वन हु कम्स फर्स्ट सपोज देयर इज अ रेस गोइंग ऑन तो हम क्या बोलते हैं कि somebody is a winner or he comes first that means what his speed is more. Now speed simply tells us how fast you are traveling, isn't it? So speed is nothing but we are trying to calculate how fast you are moving or how much distance you are covering in a given interval of time. तो अगर एक सेम टाइम इंटरवल में आप अगर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हो तो उसका मतलब है कि आपका स्पीड ज्यादा है, right? And as we know, it's a scalar quantity. Scalar quantity is the quantity in which we don't need to mention the direction. So speed is a scalar quantity, right? Now we'll see more about speed कि उसका formula क्या है उसकी unit क्या है. So if I have to define speed, how will I define the speed? I say speed is the rate of change of distance with time. When I say कि object move करता है वो क्या करता है हर बार अपना position change करता है, right? And that when it changes the position it is covering some distance, है ना. So उस distance change करने का जो rate होता है, so whenever we say rate it means it is always divided by time. So how do we define speed is the rate of change of distance with time. अगर न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हम देखें तो इट इज नथिंग बट हाउ मच डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट कवर्स इन 1 सेकेंड, तो उसे हम बोल सकते हैं स्पीड. अब यूनिट क्या हुई जैसे आप देख सकते हो फॉर्मूला क्या है स्पीड का, इट इज distance by time. So if I say the formula for speed is distance by time, how much distance the object covers in how much time, right? So distance by time is the formula used to calculate the speed. So looking at the formula, if I know that the distance is measured in meters, now I'm talking about the SI unit. If the distance is measured in meter and if the time is measured in seconds, so what is going to be my SI units? It's nothing but meter per second. You can write it in different ways. You can write it in meter per second or else you can write it as meter second raised to 1. ये भी एक तरीका है लिखने का, बट अगर आप ऐसा भी लिखते हो तो भी वो गलत नहीं होगा. अब ये तो होगी SI यूनिट, बट देयर इज अनदर यूनिट व्हिच वी टर्म इट एज CGS यूनिट. हर फिजिकल क्वांटिटीज के लिए होती है, तो इसके लिए क्या हो जाएगी CGS यूनिट विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड. So now we'll see, suppose I know the distance traveled and how much time I've taken, so I can calculate the speed. What if I have the other things, like suppose I've been given speed and time, then can I calculate the distance? Yes, definitely I can. So how do I know from two different quantities how can I calculate the third one? So simple है formula triangle, right? Now इसे हम बुलाएंगे let's say this is the speed. S for speed हमने लिया है यहाँ पे, D for your distance, yes, and T is your time. तो ये हमें ऐसा ट्रायंगल समझाएगा कि हमें कैलकुलेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. सपोज आई वांट टू कैलकुलेट द स्पीड, सो व्हाट विल आई डू? आई विल टेक डिस्टेंस बाय टाइम और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम गिव्स मी द स्पीड. सपोज इफ आई वांट टू कैलकुलेट द टाइम, तो मुझे ये वाला निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? I will say it is distance divided by speed, right? I'll say time is equal to distance divided by speed.
Suppose I have the speed and the time, then what do I need to calculate? I need to calculate the distance in this case. तो क्या करूंगी मैं? Distance is equal to, अब ये side side में है, इनमें क्या हो सकता है? सिर्फ multiplication. So it is speed into time gives me the distance. So this is the way you can जब अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है ना कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा क्या लगेगा, तो आप सिंपली फॉर्मूला ट्रायंगल ड्रॉ करके यू कैन फाइंड आउट कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्पीड or distance or time. Now, as I said, there is a concept of uniform speed. Now, uniform is something, suppose I say an object is moving. So when it moves, it covers some distance. Yes. Now, if that body or the object covers equal distance in equal interval of time, I say the speed is uniform. अब हम एग्जाम्पल से ये पिक्चर से हम समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या है और ये यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है. सपोज आपने देखा इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है, राइट, इट इज ऑन डी पोजीशन. ओके, सो यहां से आप देखो 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया ये कार ने इन हाउ मच टाइम? 2 सेकेंड्स. नेक्स्ट ए टू बी जाने के लिए अगेन इट कवर्ड 4 मीटर टू 8 मीटर डिस्टेंस कितना हुआ? अगेन 4 मीटर्स. एवरी 2 सेकेंड्स हाउ मच डिस्टेंस इट इज कवरिंग? 4 मीटर्स, है ना. तो ये क्या हुआ? ये हमारा डिस्टेंस इज इक्वल एंड व्हाट इज द टाइम इंटरवल? टाइम इंटरवल इज आल्सो equal. So that is why we say when a body covers equal distance in equal interval of time, the body has uniform speed. अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप अगर रियल लाइफ में सोचो, सपोज एक बॉल रोल कर रहे हैं हम, है ना, बट फ्रिक्शनलेस सरफेस है. हमें जनरली पता है कि हम एक बॉल ग्राउंड पे रोल करते हैं, थोड़ी देर थोड़ा डिस्टेंस जाके वो रुक जाता है क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन है. अगर हम इमेजिन करें कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब नीचे से कोई फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? वो बॉल रोल ही करता रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं, है ना. So that would be an ideal example of a frictionless surface and the body moving with uniform speed. अगर हमारे डे टू डे लाइफ में देखें तो सोचो कि आप हाईवे पे मूव कर रहे हो जहाँ पे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, तो आपको स्पीड कम करने की या ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है. तो एक ही स्पीड मेंटेन करके आप कंटिन्यूस एक स्ट्रेट रोड पे, आप डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर रहे हो, तो आप एक स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो, तो उससे भी बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड. अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म या फिर उसको बुला सकते हैं वेरिएबल स्पीड. अब ये एग्जांपल जैसे देखो, इट स्टार्टेड फ्रॉम ओ वेंट टू ए पोजीशन, है ना. तो इसमें इट कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन टाइम इंटरवल 2 सेकेंड. पहले 2 सेकेंड में 1 मीटर ट्रेवल किया, फिर ए टू बी जाने के लिए क्या किया? 1 मीटर टू 10 मीटर, दैट मीन्स 9 मीटर का डिस्टेंस कवर किया in how much time? Again 2 seconds. From B to C it covered 10 to 25, है ना. तो ये हर बार आप अगर देखते जा रहे हो, इसका टाइम इंटरवल सेम है बट द डिस्टेंस विच इट इज कवरिंग इज नॉट सेम, राइट. सो डिस्टेंस क्या हो गया? अनइक्वल हो गया, बट टाइम इंटरवल क्या है? इक्वल है. सो व्हेन अ बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time, we call that the body is moving with non-uniform speed. This kind of motion we term it as non-uniform motion. इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है. आप कार में जा रहे हो किसी भी नॉर्मल सिटी रोड पे, है ना, कोई बीच में आ जाता है, कहीं ट्रैफिक सिग्नल है तो आप रुक रहे हो तो स्लो डाउन कर रहे हो, कोई बीच में आ गया तो ब्रेक लगा रहे हो, फिर यू नो इफ यू फाइंड अ स्ट्रेच ऑफ रोड विच इज एम्प्टी यू विल इंक्रीज द स्पीड. तो हर बार में क्या हो रहा है? आपका स्पीड वेरी कर रहा है ना, with time interval. So that is called as a variable speed or non-uniform speed. But हमेशा याद रखना इसमें भी time interval is always going to be equal. जब आप define करते हो हमेशा याद रखना equal interval of time ही होगा, time interval कभी भी unequal नहीं होगा, right? नेक्स्ट देखते हैं एवरेज स्पीड. तो जैसे हमने बोला ना कि हाँ एक सिटी प्लेस है, सिटी है जहाँ पे ऑब्जेक्ट कार मूव कर रहा है, कुछ भी मूव कर रहा है, जहाँ पे आपका स्पीड कांस्टेंट नहीं रह पा रहा है, यूनिफॉर्म नहीं रह पा रहा है. तो उस केस में सपोज आप वन सिटी टू अदर सिटी या फिर आप जा रहे हो, तो वहां पे आपका स्पीड हमेशा चेंज होता रहेगा. तो उस टाइम पे अगर आपको बोलना है कि आपका स्पीड क्या था ओवरऑल इन द जर्नी, क्योंकि ये चेंज होता रहा तो यू विल नॉट हैव वन पर्टिकुलर वैल्यू टू से. तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम बताएंगे एवरेज स्पीड.
तो जब भी आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, यू विल नॉट बी एबल टू गिव अ यूनिफॉर्म स्पीड वैल्यू। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। अभी एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, वॉट एवर डिस्टेंस यू ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर और किलोमीटर, वॉट एवर यूर टेकिंग, डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल टाइम टेकन। सो सपोज आपने 150 किलोमीटर्स टोटल ट्रेवल किया है, तो यू विल टेक दैट एंड व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन। सो सपोज आपने 3 आवर्स ले लिया वो डिस्टेंस कवर करने के लिए, देन वी विल से कि चलो अगर आपका है इन, आई कैन राइट इट इन किलोमीटर, यस, किलोमीटर में भी लिख सकते हो, मीटर में भी लिख सकते हो, बट यू हैव टू टेक द यूनिट अकॉर्डिंगली। और ये हुआ 3 आवर्स में। सो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल व्हाट कैन आई से, 150/3 करके, यस, 50 किलोमीटर पर आवर वॉज माई एवरेज स्पीड, राइट। तो जैसे ही ये है, जब भी नॉन वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहता है बॉडी का, उस टाइम पे हम एवरेज स्पीड बताएंगे, राइट। एंड इट इज, if the body is moving with non-uniform speed, it's average speed. And suppose body move कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड पे, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड कब आता है, जब हम बोल रहे हैं कि बॉडी मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो हर मिनट, हर सेकेंड, हर इंस्टेंस पे आपका स्पीड चेंज हो रहा है। तो एट वन पर्टिकुलर इंस्टेंस इफ यू सी, लाइक आपके स्पीडोमीटर पे आप जब देखते हो ना, तो व्हाट काइंड ऑफ स्पीड इट इज शोइंग यू, इट इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट एनी इंस्टेंस during the travel. So that is instantaneous. Suppose body is moving with uniform speed. उस टाइम पे आपका क्या होगा, आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम। जैसे मैंने बोला हाईवे पे है ना, हाईवे पे आप जा रहे हो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट स्टॉपिंग एनीवेयर, तो आपका अगर आप देख रहे हो कि स्पीडोमीटर का उस नीडल है 60 किलोमीटर पर आवर पे, वो मूव भी नहीं कर रहा है, इट इज स्टेइंग देयर, यू ट्राइंग टू मेंटेन इट। तो उस टाइम पे क्या हो गया, it is your instantaneous speed as well as your average speed are going to be same if the body is in a uniform motion or in uniform speed. Now we'll see the concept of velocity. हमने पहले speed में बोला था कि it is a scalar quantity. That means it doesn't require direction to be specified. So we can simply say कि हाँ, speed of the bike is around 70 km per hour. But I don't need to specify direction in that case. But suppose I'm talking about the velocity, I will always have to specify the direction. So I would say the bike was moving at 70 km per hour towards east or towards west, whatever. So speed along with the direction, when I mention, it becomes a physical quantity called as velocity, right? So when we mention speed as well as direction of a moving object, it becomes the velocity. So velocity of the body is the distance traveled per second by the body in a specified direction. So what is important to mention here is the direction. अगर आप direction नहीं mention करते हो तो वो normally speed ही बन जाता है। बट अब इसकी तो जैसे मैंने बोला ये डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है इसमें, तो ये कैसा क्वांटिटी हो गया, इट हैज बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ यूनिट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम, इट इज मीटर पर सेकेंड ओनली। तो स्पीड एंड वेलोसिटी का यूनिट डिफरेंट नहीं होने वाला है, यूनिट सेम ही रहेगा। अब हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, राइट, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय टाइम। देन व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यस, क्या है डिफरेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में? You can also refer my video on distance and displacement, which I'll post in the description box as well. So speed में distance बताया जाता है जिसमें direction नहीं होता, तो displacement is a distance along with the direction. So you can write speed as distance by time, whereas velocity is displacement by time. अब जैसे हमने स्पीड के लिए कुछ फैक्टर्स देखे थे, वैसे ही हम वेलोसिटी के लिए देखेंगे। फर्स्ट है उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी द सेम, yes, but what is the thing to be noted and to be written always in the definition is the direction. So we'll see what is the definition. So if a body travels equal distance in equal interval of time,
in a particular direction. So इस definition में add क्या हुआ? Only that particular direction, है ना, क्योंकि हम velocity define कर रहे हैं तो direction तो करना ही करना है. So when that happens, we say the body is moving with uniform velocity. Example क्या है? Like traveling through air. And why is that an example of uniform velocity? Because it always travels from sun to earth, right? तो उसका कुछ direction है, वो उल्टा तो नहीं जाएगा, है ना? So that is going to be the direction. So we say it is the velocity, right? Now uniform speed of an object will be there if it is moving in the same direction, right? तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सपोज मैंने बोला कि टूवर्ड्स ईस्ट हम जा रहे हैं विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, सो वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर वो ऑब्जेक्ट ईस्ट से जाके फिर डायरेक्शन चेंज करता है टूवर्ड्स वेस्ट और साउथ और व्हाटएवर, it doesn't remain a uniform velocity. As long as the direction remains same, the velocity is uniform. As soon as the direction changes, the velocity becomes non-uniform or variable. So we'll see what is the variable velocity now. Now variable velocity में two parts हो सकते हैं definition में भी. Suppose if a body moves unequal distance in equal interval of time, जैसे मैंने बोला कि equal interval तो हमेशा ही रहेगा. अब जैसे उसका distance अलग अलग है, टाइम इंटरवल तो सेम है. सपोज पहले 1 मिनट में इट कवर्ड 1 मिनट में 2 मीटर्स, नेक्स्ट 1 मिनट में इट कवर्ड 5 मीटर्स, नेक्स्ट 1 मिनट में इट कवर्ड 10 मीटर्स. तो ये क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इंटरवल ऑफ टाइम स्टिल इक्वल, यस, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है. क्या चेंज हुआ है? डिस्टेंस ट्रैवल, राइट? तो ये एक हो गया वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सपोज उसका स्पीड कांस्टेंट है, मतलब हर एक suppose 1 minute में it is covering 2 meters of distance, but every now and then it is changing the direction. Speed constant है but direction change हो रहा है. That is also a case of variable velocity. So when we say velocity becomes variable, it becomes variable due to two factors or two conditions. When first thing, if its speed changes, जैसे मैंने example बताया, speed changes, and the second is speed remains constant but the direction changes. So both the cases your velocity is going to be variable. तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ स्पीड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, या तो स्पीड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है. तो दोनों भी एक साथ हो सकते हैं कंडीशंस. So in that case it becomes a variable velocity. Now moving along a straight line with varying speed or even moving in a curve path. दोनों भी एग्जाम्पल, जैसे आप एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बट आपका स्पीड हमेशा चेंज होते रहता है, तो उस टाइम पे वो हो गया वेरिएबल वेलोसिटी. बट सेकेंड क्या है? अब ये है एग्जाम्पल. आई शो यू वन मोर एग्जाम्पल फॉर दिस. बिफोर दैट, मूविंग इन अ कर्व पाथ, जैसे आप सर्कल में भी मूव कर रहे हो कभी, तो क्या होता है? आपका स्पीड अगर सपोज आपने कांस्टेंट रखा है इन अ सर्कुलर मोशन, बट यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन एवरी सेकेंड, एवरी इंस्टेंस, तो वो भी एग्जाम्पल है वेरिएबल वेलोसिटी. देन कम्स द एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी हम कब कंसिडर करेंगे? यस, जब बॉडी मूव कर रहा है non-uniform speed or non-uniform velocity से. If the velocity of the body moving in a particular direction changes with time, the ratio of displacement to the time taken. तो अब जैसे हमने देखा कि velocity is not constant or not uniform. In that case, I can't say what was my overall velocity. In that case, I will calculate the average velocity. And how do I calculate that? I have a formula: displacement by total time taken. हमने एवरेज स्पीड में देखा था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, बट हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है इन केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी. वॉट एवर इज योर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? हमने देखा कि हाँ, इसमें ये एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी ये है, ये वो है, बट विल जस्ट नोट डाउन फ्यू डिफरेंसेस जो इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही याद रखना है. ठीक है. सो स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम. वी इवन से दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. इस तरह से भी इसको डिफाइन करते हैं. वेलोसिटी क्या है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. सो डायरेक्शन तो मेंशन करना ही है. और एल्स यू कैन इवन राइट इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. Yes. Now speed is another point that we've seen. It's a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Now speed cannot be zero.
तो इसका ये पॉइंट का मतलब ये है कि एज लॉन्ग एज द बॉडी इज मूविंग, अगर बॉडी मूव कर रहा है तो उसका स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगा. बट now this is not, we are talking about the average speed, not the normal speed. Suppose average speed, as long as the body is moving, is not going to be zero, but average velocity can be zero. Now ये कैसे हो सकता है? Suppose आप एक पॉइंट से स्टार्ट किया, एक पूरा सर्कल, एक राउंड मार के, यू केम बैक टू द सेम पोजीशन. सो इफ योर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, that means your displacement is zero. So in that case, your average velocity will also be zero. But that cannot happen because अगर आप एक पॉइंट से सर्कल लगा के आ भी रहे हो तो डिस्टेंस आपने पक्का ही कवर किया, तो आपका एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकता. सो दिस इज फॉर द एवरेज स्पीड, राइट? And this is for the average velocity, right? So अगर average velocity calculate कर रहे हो, मूव करके भी वो velocity जीरो हो सकता है, but speed नहीं, right? See example of non-uniform velocity, जैसे मैंने बोला कि if you're moving, so this is called as uniform circular motion. जैसे ये कार मूव कर रहा है in a circular path, but what is the difference? Speed same है. सो एवरी इंस्टेंस, अगर आप सर्कल में मूव कर रहे हो तो एवरी इंस्टेंस आपको क्या करना है? आपको स्पीड चेंज करना है, राइट? सॉरी, द डायरेक्शन चेंज करना है, राइट? सो व्हेनेवर यू चेंज द डायरेक्शन, योर वेलोसिटी इज स्टिल गोइंग टू बी अ वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब देखते हैं एक्सेलरेशन क्या है. हम बाइक पे जाते हैं, कार में जाते हैं, वी ऑलवेज कीप लुकिंग एट द स्पीडोमीटर ना, कि स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, लाइक वेदर इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. एंड वी से व्हाई आर यू एक्सेलरेटिंग सो मच, देन वी यूज द टर्म, राइट? प्लीज डू एक्सेलरेट, फास्ट चलाओ, है ना? सो वी यूज दिस टर्म. सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो आपका वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, तो जैसे आप इसमें भी देख सकते हो कि चलो 20 से 40 गया, 40 से 50 गया, 50 से 100 गया. सो दिस चेंज इन द वेलोसिटी इज हैपनिंग इन सम टाइम ड्यूरेशन. So that time duration, how much time it takes to accelerate or go from 0 kilometer per hour to 100 kilometer per hour, how much time it takes, that gives you the value of acceleration. So it is nothing but rate of change of velocity with time. And acceleration is also a vector quantity. So what has to be the unit? Suppose हम calculate कैसे करते हैं acceleration, जैसे आपका एक initial speed होता है, इसमें एक होता है final speed. So from zero, जैसे मैंने बोला कि अगर आप कार निकालते हो, बाइक निकालते हो आपके पार्किंग से, तो जीरो स्पीड होता है, वहां से आप रीच करते हो सपोज 50 और 60. तो ये होने में जीरो आपका क्या होता है? इनिशियल स्पीड, राइट? इनिशियल वेलोसिटी. एंड 50 होता है आपका फाइनल वेलोसिटी. सो इनिशियल इज टर्म्ड एज u एंड फाइनल वेलोसिटी इज टर्म्ड एज v. सो इनमें जो डिफरेंस है, राइट? सो चेंज, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन द वेलोसिटी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. सो उसे हम डिपिक्ट करेंगे एज v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो ये चेंज कितने टाइम में आया है वो देखना है, और वो हमें देगा एक क्वांटिटी कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. सो ये अगर मुझे इसका यूनिट देखना है तो मैं देखूंगी कि चलो ऊपर जैसे न्यूमरेटर में मेरा स्पीड है, विच विल बी मीटर पर सेकेंड divided by denominator is having time, which is in second. So what do I get as a unit of acceleration? Meter per second square. I can write it as meter second raised to 2. So ये कौन सा है? This is the SI unit. Then the CGS unit has to be centimeter per second square. And the formula we use to calculate the acceleration is v minus u by t. So is it like only when you're increasing the speed you're saying that you're accelerating? No. The places where, or rather the conditions when we say we are accelerating, there are three conditions. First is, you say there's acceleration when your speed is increasing. That means you're speeding up. पहले slow थे, fast हो गए. Then also you'll use the term acceleration, right? You're accelerating even when you're slowing down. जैसे आप ब्रेक लगाते हो, स्पीड कम करते हो, है ना? स्पीड बढ़ाना एक बात हुई, स्पीड रिड्यूस करना, उसमें भी क्या हो रहा है? वेरिएशन हो रहा है वेलोसिटी का. एंड wherever there is change in velocity, we say it is acceleration, right? So when you're slowing down, we use a different term, but it is still called as acceleration. We use the term as retardation, slowing down, right? So that is actually negative acceleration. Retardation क्या होता है? Negative acceleration.
Also, you're keeping the same speed, but you're changing the direction. Then also you say you're accelerating. So I'm accelerating because I'm changing the direction. So तीन cases में acceleration होता है जब आप speed बढ़ाते हो, speed कम करते हो, या same speed पे आप direction change करते हो. In all the three cases, you still are in the acceleration mode, right? So what is the difference between velocity and acceleration? Velocity simply means how fast you're going, but then we talk about the acceleration, it means how fast your speed increases or how fast your speed changes. आई बात समझ में? जैसे वेलोसिटी क्या बताता है, आप कितना फास्ट जा रहे हो, कितना फास्ट मूव कर रहे हो, while an acceleration बताता है कि how fast your speed is changing, right? That is the basic difference between velocity and acceleration. सो आज के लिए बस इतना ही. आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है, प्लीज लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच.